Hello students, I am Vivek Gupta from Krishna Engineering College, and today I am going to discuss some topics from Unit 1 Physics. So the topics are postulates of special theory of relativity and transformation equations. So now comes to the first topic, postulates of special theory of relativity. Before going into detail of this topic, let us discuss some previous work that we have done so far. In first lecture, we discussed about the frame of reference. In frame of reference, we discussed that there is a need of a frame of reference which is required to describe the position or motion of a object or a body. In second lecture, we discussed about the Michelson-Morley experiment. This experiment was this experiment was failed, but even then it was a great success that we get rid of the hypothesis of ether. So Michelson-Morley experiment is known as the basis for the new science. जो भी मॉडर्न साइंस है वो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही स्टैंड करती है. In 1905, Einstein gave special theory of relativity. He published 3 papers in 1905, and one paper was on special theory of relativity. And this special theory of relativity is based on the Michelson-Morley results. Michelson-Morley experiment says that when we go for the result, it says that there is no ether medium, there is no absolute rest frame, everything is moving with respect to each other, and we can calculate the value of anything with respect to any other thing. There is no absolute rest frame. So in this way, ether hypothesis was discarded. And the second conclusion, that was the main conclusion of this experiment, was that the speed of light is constant in all inertial frames. It doesn't depend on the relative motion of source and observer. So Einstein gave his theory, special theory of relativity, and the postulates he assumed was the following. Number one is the laws of physics are same in all inertial frame of reference, moving with constant velocity with respect to each other. यानी फिजिक्स के सारे नियम सभी इनर्शियल फ्रेम में समान रूप से लागू होते हैं. And the second postulate was the speed of light in free space has the same value in all inertial frame of reference. जो लाइट की स्पीड है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में वैक्यूम में सेम रहती है. And it does not depend on the mutual or relative motion between the source and observer. So these two are the postulates of special theory of relativity which was given by the Einstein. तो इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 2 मार्क्स क्वेश्चन ही आएगा. डिटेल कोई इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही इसका कोई डिटेल पार्ट है. Now comes to the second topic, which is transformation equations. So first of all, clear what is the need of the transformation equations and what is transformation equation. So let's take an example in this video. Here you can see that a truck is moving with the speed of 50 km per hour, and 2 boys are in the truck and they are playing with ball, and they are throwing ball with the speed of 10 km per hour. So the speed of ball for the boys is 10 km per hour, but at the same time, if a person is standing outside the truck on the road, then he will see that truck is moving with 50 km per hour and ball is moving with 10 km per hour. So the final velocity for him will be 60 km per hour for the ball. So in that case, you see both are correct. Inside the truck for the boys, the speed of ball is 10 km per hour. But for the outside person, it is 60 km per hour. And both are correct. Then what can be done? There must be some correlation between these two frames. So to provide the correlation between these two frames, we are in need of some transformation equations. क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पर अगर सही हैं
तो कुछ तो ऐसा रिलेशन होगा दोनों के बीच में जिससे दोनों को हम जस्टिफाई कर सकें। तो दोनों को जस्टिफाई करने के लिए जिन इक्वेशंस की जरूरत होगी, दीज इक्वेशंस आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते हैं जो दो डिफरेंट फ्रेम्स की हैपनिंग को कोरिलेट करते हैं। दो डिफरेंट फ्रेम्स को कोरिलेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को अगर साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे अ पार्टिकल हैज डिफरेंट कंडीशन a particle has different coordinates in different frames at the same instant. The equations relating the coordinates of two frame of reference are called transformation equations. तो वो कोरिलेट करता है दो फ्रेम्स को, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दो तरह के होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। सो व्हाट आर द डिफरेंस? Actually, before the Michelson-Morley experiment, Galilean transformation equations were sufficient to explain all the situations, all the problems. In Newtonian classical mechanics, Galilean transformations were used and there was no problem solving the problems. But after Michelson-Morley experiment, it was felt that Galilean transformations are not sufficient to explain all the problems. Michelson-Morley experiment uh, explains that Galilean transformations are failed to explain the Michelson-Morley experiment. So in that case, we are in need of a new type of transformation equations which were given by Lorentz. Lorentz was a mathematician who gave Lorentz transformation equations. So first of all, let's see what are the Galilean transformation equations. The equations relating the coordinates of a particle in two inertial frames whose relative velocity is negligible in comparison to the speed of light. जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई ही वहां होती थी जहां पे स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो उस कंडीशन में दो फ्रेम्स को जो कोऑर्डिनेट्स को कोरिलेट हम करते हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करते हैं। दो डिफरेंट फ्रेम में किसी हैपनिंग को कोरिलेट करने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी हियर, this is a frame, fixed frame. Here you can see this is a fixed frame and the other frame is moving frame. Let's suppose the moving frame is moving with velocity v. This is moving with velocity v with respect to the first frame in the x direction. मूवमेंट केवल x डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों को कोरिलेट करने के लिए जो रिलेशन यूज होगा वो हमारे पास इक्वेशंस बनकर आती हैं, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी। y और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मूवमेंट नहीं है, तो y डैश विल बी y एंड z डैश विल बी z। इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस टाइम वाज टेकन कांस्टेंट, t को कांस्टेंट लिया गया, टाइम में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए t डैश विल बी t। So Galilean transformations will be x dash equal to x minus vt, y dash equal to y, z dash equal to z, and t dash equal to t. So in this case, you can see the movement is only x direction, so the change is only in the x direction, and the relation is given by this equation. So this is the set which is known as Galilean transformation equations. The most important thing in this part is that we have taken time as constant. So these are the Galilean transformation equations. And what are the observations of these Galilean transformations? Observations are, first is, in Galilean transformations, acceleration remains invariant. जो acceleration है उसमें कोई change नहीं आता है, but velocity is not invariant. ये कैसे है? इसको आप यहाँ देख सकते हैं। Let's see. अभी हमने देखा कि दो फ्रेम हैं अगर हमारे पास, और एक फ्रेम में कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये सपोज एक फ्रेम है s फ्रेम, और दूसरा फ्रेम इस पहले फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो कि s डैश फ्रेम है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
ये कोऑर्डिनेट, एक फोर्थ कोऑर्डिनेट इसमें और होगा, उसको भी ले लेते हैं, इट विल बी t. So the coordinates are x, y, z and t. In the second frame, the coordinates are x, z, y, z, sorry, x dash, y dash, z dash and t dash. So the relation is x dash equal to x minus vt. So now let's differentiate this with respect to t. So dx dash over dt equal to dx over dt minus v. So you can write here u dash equal to u minus v. So here you can see that velocity is not invariant, velocity changes. ये देखिए velocity में change आ रहा है. Now again differentiating with respect to t, you will get du dash over dt equal to du over dt minus 0, because v was constant, so it will be 0. So you can write it a dash equal to a, यानी acceleration हमारा change नहीं होता है. So acceleration is invariant under the Galilean transformations, but velocity is not invariant. Invariant means जो time के साथ change ना हो. Invariant का मतलब है जो समय के साथ ना बदले वो invariant कहलाता है, और जो समय के साथ बदले वो variant कहलाता है. तो यहाँ हम गैलीलियन में देखते हैं कि acceleration तो invariant है लेकिन velocity variant है. So this violates the second postulate of special theory of relativity, क्योंकि सेकंड पोस्टुलेट में तो ये माना ही गया कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये वायलेट कैसे करता है? वायलेट ऐसे करता है कि मान के चलिए आपके पास एक फ्रेम है और दूसरा वाला फ्रेम जो आपके पास मौजूद है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये एक दूसरा फ्रेम है आपके पास जो पहले के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब अगर हम इस पहले फ्रेम से कोई सोर्स है यहाँ लाइट का और यहाँ से लाइट का सिग्नल हम पास करते हैं, तो जो लाइट का सिग्नल हम पास करेंगे इस एस फ्रेम से, और ये जो एस डैश फ्रेम है, अब इसके रिस्पेक्ट में जो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस सेकंड फ्रेम के लिए जो वेलोसिटी होगी वो c माइनस v हो जाएगी. लेकिन अभी जो सेकंड पोस्टुलेट है उसमें हमने ये कंसीडर पहले ही कर लिया कि लाइट की स्पीड सोर्स एंड ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज c. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर वायलेशन हमें मिलता है और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क नहीं करता. So velocity of light changes in the other frame, thus violating the second postulate. तो जब ये postulates, सॉरी, जब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई तो हमें नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जरूरत थी, और ये चीज हमें पता चली माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बाद. तो नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हमें मिले, that was given by the Lorentz, who was mathematician. So the new transformation equations are Lorentz transformation equations, and according to this, it is a set of equation which correlates space-time coordinate of an event obtained in a space as observed by two observers in different frame of reference, moving with constant velocity relative to each other. It is known as Lorentz transformation equations. तो ये पैटर्न वही है जो गैलीलियन में था कि दो फ्रेम्स के इवेंट को कोरिलेट करेंगे हम इन इक्वेशंस की हेल्प से. लेकिन जो प्रॉब्लम गैलीलियन सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें सॉल्व करके देते हैं. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में अगर आप देखें यहाँ, तो ये जो फ्रेम S है ये एस डैश के रिस्पेक्ट में, सॉरी एस डैश एस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है इधर.
तो जो डिफरेंस है गैलीलियन और लॉरेंज में जो लिया गया स्टार्टिंग में, वो ये है कि गैलीलियन में अगर भी आपने देखा कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी हमने लिया था, लेकिन यहाँ पर गैलीलियन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस में हम डायरेक्ट इक्वल ना लेकर के एक्स डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी कहते हैं, यानी ये इस पर प्रोपोर्शनल की फॉर्म में रिलेट करता है, ना कि इक्वल है। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज नोन एज, इसको यहाँ गामा लिया है, कई जगह हम के भी लेते हैं, तो एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। तो ये वाला पार्ट तो गैलीलियो का था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में यही चीज एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये जो गामा फैक्टर है, ये बहुत ड्रास्टिक चेंज प्रोड्यूस करता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने टाइम को कांस्टेंट लिया था, टी वाज कांस्टेंट in Galilean transformations, but here t is not constant, t को हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं, t वेरी करता है। तो ये कंसिडरेशंस हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ये हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे। अभी हम आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे किस तरीके से इन्हें ड्राइव करना है। तो ये हमारे को गैलीलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y dash equal to y, z dash equal to z, and t dash equal to t minus vx upon c square upon square root 1 minus v square upon c square। तो ये जो सेट है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाते हैं। इसी के पैरेलल अगर आप गैलीलियन समझना चाहें तो गैलीलियन में हमने लिखा था x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई डैश वाई ही था, क्योंकि y और z डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए y और z में कोई चेंज नहीं आता है। और गैलीलियन में हमने टी डैश इक्वल टू टी लिया था, यानी टाइम में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ आप कंपैरिजन देख सकते हैं गैलीलियन और लॉरेंस का, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं किस तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को ड्राइव किया जाता है। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश। हम दो फ्रेम लेकर के चलते हैं, मान के चले कि ये पहला फ्रेम हमारा एस है और ये दूसरा फ्रेम एस डैश है, एंड एस डैश इज मूविंग with v velocity with respect to the first frame s। तो लीनियर इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। तो यहां पर अगर कोई हैपनिंग इस जगह हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y, z और t होंगे। तो इन दोनों में जो लीनियर रिलेशन होगा वो किस तरीके से लिया गया लॉरेंस में? लॉरेंस में हमने लिया कि x डैश इज इक्वल टू k x माइनस वी टी, यानी कि वो उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन निकल करके आता है x डैश इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस वी टी, सो x डैश इक्वल टू k x माइनस वी टी। दिस इज इक्वेशन 1। और अगर इसको x की फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाता है x इक्वल टू k x डैश प्लस वी टी डैश। सो दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस। Now we calculate the value of k, which is the constant. So we calculate this value, गामा फैक्टर जिसको हमने पहले कहा था, ये k, यहाँ पर हम इस k को कैलकुलेट करते हैं कि ये k किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ द k बाय यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट्स। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट ये था आइंस्टाइन का कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। यानी अभी जो हमने दो फ्रेम कंसिडर किए हैं, अगर हम उन दो फ्रेम की बात करें
ये जो दो फ्रेम हम लेकर के चल रहे हैं, तो इस फ्रेम में ये फ्रेम हमारा एस डैश है और ये फ्रेम एस है। इस फ्रेम में भी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सी रहेगी और इस पहले फ्रेम में भी स्पीड ऑफ लाइट सी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेदर इट इज मूविंग और नॉट। ये v वेलोसिटी से मूव करे या ना करे, स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी चीज को यूज करते हुए हमने सेकंड पोस्टुलेट से यूज किया, तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है x इक्वल टू सी टी एंड x डैश इक्वल टू सी टी डैश। दीज आर द इक्वेशंस। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो 1 और 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, इसमें अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो हमें मिलेगा इक्वेशन 3 और 4। x की जगह आप सी टी और x डैश की जगह अगर सी टी डैश इसमें पुट कर दें तो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिलते हैं। अब इसमें ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं थर्ड और फोर्थ, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको अब आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशंस हमें देती हैं सी स्क्वायर टी टी डैश इक्वल टू के स्क्वायर टी टी डैश सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ इस टी टी डैश से ये टी टी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहा सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर और इसमें से आपने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो वैल्यू मिलती है सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। जब आप इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, so k equal to 1 upon under root 1 minus v square upon c square. So this is the value of k. तो ये जो k की वैल्यू है ये यहाँ v पर डिपेंड करेगी, क्योंकि c तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो k की वैल्यू v पर डिपेंड करेगी और v की वैल्यू हमेशा c से कम रहेगी। v is always less than c। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है k, k की वैल्यू, जो k की वैल्यू है हमारी, इसमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अगर आप लेंगे तो k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, k इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि v की वैल्यू कभी भी c से ज्यादा नहीं हो सकती, सो इट विल बी ग्रेटर देन 1। Now comes to the next part. Now putting these values in equation 3, we get t dash equal to kt minus kx upon v square upon c square, and by solving this we get t dash equal to 1 upon under root 1 minus v square upon c square t minus xv upon c square, and you can write this t dash equal to t minus vx upon c square upon under root 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और t की फॉर्म में अगर आप लेंगे तो ये चेंज होकर के ये हो जाता है, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा एंड यू गेट दिस वैल्यू। So in this way we have Lorentz transformation equations x dash equal to x minus vt upon under root 1 minus v square upon c square, y dash equal to y, z dash equal to z and t dash equal to t minus vx upon c square upon square root 1 minus v square upon c square. So this set is known as the Lorentz transformation equations. कंप्लीट सेट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। इसी के पैरेलल अगर हम गैलीलियन इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखना चाहें, अगर इसी में हम चेंज कर दें x को x डैश से, y को y डैश से, z को z डैश से, t को t डैश से और v की जगह माइनस v ले लें तो हमें इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं, एंड दीज आर
x y z एंड t। तो एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में ये भी आता है कि राइट डाउन द लॉरेंज एंड इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिखिए और इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिखिए। तो ये दोनों सेट आपको लिखने होंगे, ये लॉरेंज और ये इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाता है। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इसमें वो देखते हैं। पोस्टुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि स्टेट द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप दोनों पोस्टुलेट्स लिख करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम के लिए आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं एंड उनको ड्राइव करिए, डिड्यूस द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी आपको 2 मार्क्स आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। गैलीलियन में भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा। लॉरेंज का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, डिड्यूस द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है क्वेश्चंस का। सो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही रखते हैं। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है उस कॉन्सिक्वेंस में जो सबसे पहला आता है वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एंड दीज आर अमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल बी सरप्राइज। ये आपको साइंस फिक्शन की तरह लगेंगे जो इसके कॉन्सिक्वेंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। और मेन जो चीज है वो ये कि सिर्फ एक फैक्टर जो गामा फैक्टर कहलाता है या के फैक्टर कहलाता है, जिसकी वैल्यू हमने ली थी के इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये के फैक्टर सारी चीजों को चेंज कर देता है। ये नए नए रिजल्ट हमको प्रोड्यूस करता है। तो यही अमेजिंग चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो that's all for today. Thanks for listening. Okay, thank you.